welcome back to my channel. So I hope you all had a great week. So from the thumbnail you can understand that this video will be all about freshers. Like what are the tips I would like to give to all the freshers, whatever I have experienced in my college life, and I think that I should have known some things before joining the college. All that from my experience I'm going to share you some tips, or you can say advices, or you can also say roadmap to all the freshers about college. Before I start with the video, please, as I always say, don't forget to subscribe the channel if you're watching this, because I've seen that 90% of viewers have not subscribed my channel. I don't know why, but do subscribe the channel and like the video. More such interesting, informative videos will be there on this channel, which will help you throughout your college journey. Okay, let's move it to the video. So there are not too many things that you have to worry about. You have to be yourself. So tip number 1, don't change yourself. Okay? You don't have to change yourself because of some other people just to be friends with some other people. Don't change yourself, because for long run it will be very difficult for you to maintain that fake personality of yours just to make some friends or to portray yourself in some certain way. Tip number 2, don't be very overexcited about being in college, because it's very overrated that people say that we are in college. It's not more than a school. Okay, only difference is you don't wear uniforms. Whatever you have watched in movies, TV, serials or series, it's very much overhyped. It's not less than a school. Okay, and especially if it's a girls college, okay, it's completely a school thing. Tip number 3, you should be clear about your goal. That what is the main reason you are going to college? What will be the final result of studying for 4 years of BTech, or if you are doing MBA, if you are doing BA, anything you are doing, why you are doing? Not just to get degree. Okay, you are there to learn something. Okay, there is a freedom. Like there's a difference in school and college. The one difference is that you have the freedom to do anything, to learn anything. Go to any faculty or any teacher and learn about the things you want to learn. Like if I'm in electronics and communication engineering, okay, but I have interest in IT subject also. Okay, so I can do one thing that I'm studying for my course, okay, but I also have some interest in IT subject also. And so I will study by myself about IT from YouTube. You know, now major source of education is coming from YouTube only. Students do self study. Okay, books से पढ़ते हैं, YouTube से सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं कॉलेज में आके. Being very honest, क्योंकि कोई भी कॉलेज में इतना अटेंटिवली क्लास को अटेंड ही नहीं करता है. एट द एंड सबको यूट्यूब पे ही सब डिपेंडेंट रहते हैं कि यूट्यूब पे वीडियोस देख लेंगे, विच इज गुड ऑल्सो कि आपका टाइम थोड़ा सेव कर देता है. अगर आपने कुछ चीज मिस कर दी, यू कैन वॉच फ्रॉम यूट्यूब. ओके, go slow, take time to adjust. Okay, don't be in hurry for anything. When you newly join the college, you are in hurry. Like you are thinking, okay, so I have to do this, I have to do that, I have to make friends also, so that we have the certain group. That's good, that's great, but be slow. Try to understand people. Okay, because first year में क्या होता है, mostly सब friends बन जाते हैं, because they are very new, they are very fresh. That is the reason all the new joinees are called freshers, because you all are very fresh. You don't know anything actual world में क्या क्या होता है, how are people, how they react, what they do, why they do all that. Okay, so be slow. So don't burden yourself that you should know everything, you have to be active in every field. Don't do that. Never regret what you do. Okay, first of all, think before doing anything, and if something went wrong, then take it as a lesson and don't regret it, but learn from your mistakes. Absorb everything. Okay, notice everything, adjust yourself. Don't be in hurry, don't think to be everywhere. Okay, absorb everything, learn and understand. Point number 5 is don't be in hurry to make so-called college friends, because आजकल तो ये हो गया ना, रील्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी दिखाते हैं that how group of friends go out, have the group, they do fun. वो बस रील के लिए होता है भाई, तुम लोग समझो ये रियलिटी नहीं है. All the people who makes reel कि हमारा ग्रुप है, we are in group, we are enjoying, ये सिर्फ और सिर्फ एक रील के लिए होता है. रियलिटी में सब इतने खुश नहीं होते हैं. They are in a group, but just to show that they have group. ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, सबका अपना एक छोटा ग्रुप होता है. लाइक ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप भी चल रहा होता है. लाइक कोएड कॉलेज में आई डोंट थिंक सो ये इतना होता है. इट्स कूलर. एज आई हैव टोल्ड यू मेनी थिंग्स अबाउट being in a girls college. I have told you in my video. Which video? If you don't know, this is that video which I'm talking about. In this video I have explained what happens in girls college and why it is different from boys college.
बॉयज नहीं, कोएड कॉलेज। सो चिल, एंजॉय योर फर्स्ट ईयर ही आप एंजॉय कर सकते हो, बट डोंट फॉरगेट टू स्टडी बिकॉज सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही आप सबसे ज्यादा स्कोर करते हो। सो पॉइंट नंबर 6 इज फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स वाइज मैं बता रही हूँ आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना है, बिकॉज फर्स्ट ईयर में सब कुछ 12th का ही आता है, 12th का आता है। बस आपको ये होगा जो आपने 12th में, क्योंकि अब जो है 12th में बहुत सारी चीजें सीबीएसई ने कट कर दी सिलेबस से, बट कॉलेज में सब आएगा। ओके, चीजें कट हो सकती है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, जिस वजह से फैकल्टी नहीं पढ़ा पाई है, कुछ ना कुछ रीजन से सिलेबस कट होता है, बट ये बहुत रेयर केस में होता है। ओके, और कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर में सब कुछ 12th का आएगा, सो इसलिए प्लीज ब्रश अप एवरीथिंग व्हिच यू हैव लर्नड इन 12th। Okay, try studying from your reference books. Okay, side by side you have to enjoy also first year, make friends, understand people, because first year में आप बहुत naive होते हो। Naive means you are very innocent actual में। It's easier to gel up with people, to make friends। तो friends बनाओ first year में, जितने friends बनाने बना लो, because filter होते जाएगा। Every semester there will be a filtration of friends, I'm telling you। ऐसा होगा at last, like आपका third year में या fourth year में आपके पास I think hardly 2 to 3 genuine friends रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, यू शुड हैव इन माइंड कि आपको कहाँ पे प्लेसमेंट चाहिए और आपको फ्यूचर किस रोल में आपको अपना फ्यूचर बनाना है। यू शुड नो कि आपको फ्यूचर में क्या बनना है कॉलेज में। लाइक आप आए हो बीटेक करने आए हो आप, तो इट मीन्स यू वांट टू बी एन इंजीनियर, और आपका सब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर साइंस। लाइक यू मस्ट हैव थॉट दैट यू वांट टू बी अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेवलपर, everything related to coding, you want to get placement in certain company, you must be having this in your mind, right? अभी तक आपको, क्योंकि कॉलेज अगर आप ज्वाइन करें तो आपको इतना तो पता ही होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो। So, आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको अपना डीएसए करना है। लाइक प्लीज डीएसए करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ईयर में क्या होता है, स्टूडेंट्स आर वेरी लाइट वेटेड, लाइक दे थिंक ओके ये आराम से कर लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, बट वो थोड़ा सा एंजॉय नहीं, एंजॉय ही हो जाता है 50% से ज्यादा, तो 50-50 नहीं होता है, पूरा ही आपका एंजॉयमेंट में चला जाता है और आपको पता नहीं चलता है। और आप एग्जाम्स भी ऐसे ही दे रहे होते हो कि एग्जाम से 2 दिन पहले स्टडी किया एंड यू गिव द एग्जाम एंड यू गेट पास। ठीक है, सो ये पास वास का मत करो, अच्छे से फर्स्ट ईयर में ही सिर्फ मार्क्स आते हैं। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ईयर में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और उसके बाद लास्ट ईयर में भी आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं, बिकॉज 3 ही सब्जेक्ट बाकी रह जाते हैं। आई देन यू गेट टू नो कि अच्छा कैसे स्टडी करना है। दैट इज द रीजन फोर्थ ईयर में आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एंड फर्स्ट ईयर में। सेकेंड एंड थर्ड में इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट गुड मार्क्स, तो इसलिए सीजीपी अगर आपको अच्छी मेंटेन करनी है, बिकॉज अगर आप सीजीपी अच्छे मेंटेन करोगे तभी आप अपने मास्टर्स, अगर आपको फर्दर हायर स्टडीज करनी है तो आपको अपनी सीजीपी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 9+, लाइक 9+ तो होनी चाहिए। अगर आपको मास्टर्स करनी है अच्छी जगह से, लाइक आईआईटी वगैरह से करनी है या अब्रॉड में भी करनी है विद स्कॉलरशिप, सो योर सबसे पहली बात है दैट यू शुड गेट 9+ सीजीपी। तो उसके लिए आपको फर्स्ट ईयर से ही फोकस की आपके मेंटेन रहे, फर्स्ट ईयर में आपके मार्क्स आ सकते हैं, तो प्लीज उसमें ही मेहनत कर लेना यार। आई नो इट विल बी वेरी टायरिंग, मन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, बट या यू हैव टू मेंटेन दैट। एंड स्पेशली ज्यादा डिस्ट्रैक्शन इसीलिए होगा, आई एम टेलिंग यू, लास्ट के लिए मत छोड़ना, बिकॉज स्पेशली दिस इज फॉर IGTT स्टूडेंट्स, दिस 1 minute थिंग विच आई एम सेइंग नाउ। हमेशा IGTT में एग्जाम्स फेस्ट के 1 हफ्ते पहले ही हो जाता है। सॉरी, आई मीन टू से कि IGTT में हमेशा जब भी एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम से 1 वीक पहले ही फेस्ट रख देते हैं कोई ना कोई, और जिस वजह से सब बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, और फिर आपके पास सिर्फ 1 वीक, हार्डली 1 वीक रह जाता है फॉर योर एग्जाम्स, एंड फिर आप प्रिपेयर नहीं कर पाते हो। सो प्लीज थोड़ा थोड़ा ना डेली पढ़ लेना, जैसे जो भी कॉलेज में पढ़ा रहे होंगे, थोड़ा सा अटेंटिव रहना, लाइक व्हेन यू आर इन क्लास बी अटेंटिव एंड नोट डाउन व्हाटएवर टीचर इज सेइंग। पता है क्यों? टीचर एंड मोमेंट पे जब आप एग्जाम से कुछ टाइम पहले आप पढ़ना शुरू करोगे ना, कुछ दिन पहले, तो दे विल ऑटोमेटिकली से जो मैंने क्लास में पढ़ाया था ना बस वही आएगा। अगर आपने पूछा ना मैम बता दो ना कुछ, तो लाइक कैसा एग्जाम आएगा, कुछ ऐसे ब्रॉड वे में बता दो कि क्या क्या पढ़ना है। मैम बोलेगी जो मैंने क्लास में बताया वही आएगा, एंड प्लीज वही आता है। सो जो मैम क्लास में बताती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। सो प्लीज आप क्लास में जो भी मैम लिखवाए, जो भी टॉपिक बताए, ध्यान से पढ़ लेना, सर भी जो भी बताएंगे। सो इन दिस वीडियो आई हैव टोल्ड यू, अगर आप डीएसए नहीं करोगे आपके लिए बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, प्लेसमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो प्लीज डीएसए करना फर्स्ट ईयर से ही बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड नो हाउ डीएसए एंड ऑल्सो ट्राई टू लर्न सम लैंग्वेज। ठीक है, ये आपको करना ही करना है, बिकॉज सेकेंड ईयर में ही मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर में इवन सेकेंड या थर्ड सेमेस्टर में माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, एंड उसका फॉर्म अगर आपने भर दिया और आपका अगर माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन हो गया, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट बहुत मास रिक्रूट करती है हमारे कॉलेज में, विच इज वेरी ग्रेट।
उसमें फिर ये हेल्प हो जाती है कि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो अगर आपने इंटर्नशिप कर ली तो आपको पीपीओ जरूर मिलेगा। एंड यू वोंट बिलीव, माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप के 1 लाख देती है, सिर्फ इंटर्नशिप के पर मंथ, लाइक 2 मंथ्स की इंटर्नशिप होती है और इंटर्नशिप में 1 लाख अराउंड देती है और स्टे के लिए भी सारे सोर्सेज देती है, आप स्टे कर रहे हो बाकी सब कुछ 1 लाख 1.5 लाख ऐसे देती है। एंड इट्स अ बिग अमाउंट फॉर जस्ट फॉर इंटर्नशिप। ओके, सो सोचो कि अगर आपकी फिर पीपीओ लग गई तो कितना अच्छा है, बिकॉज पीपीओ लग सकती है, बट माइक्रोसॉफ्ट जब हमारे कॉलेज में आई थी फाइनल्स के लिए, लाइक डायरेक्ट फॉर प्लेसमेंट के लिए आई थी जब, तब कोई बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, 0 सिलेक्शन हुआ था। ओके, बट जो इंटर्न्स उन्होंने लिए थे उनको पीपीओ जरूर मिला था, लाइक इंटर्न्स 41 थे तो पीपीओ उसमें से 31 को मिला था। इट्स अ वेरी गुड डील। सो प्लीज आप फर्स्ट ईयर से डीएसए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना और अच्छे से करना। नेक्स्ट पॉइंट, प्लीज ज्वाइन एनी ऑफ द क्लब्स। सोसाइटीज जरूर ज्वाइन करना, डोंट मिस इट आउट। सोसाइटी जरूर कोई ना कोई एक कोई सोसाइटी ज्वाइन करना और बी एक्टिव, थोड़ा एक्टिव रहना, ये नहीं कि सिर्फ ज्वाइन कर लिया एंड खत्म। एंड थोड़े अपने सीनियर्स के साथ थोड़ी सी बातचीत बना के रखना, दे विल हेल्प यू, लाइक सीनियर्स विल बी योर लाइफलाइन। लाइफलाइन तो ज्यादा बोल दिया मैंने, बट या सीनियर्स, अगर अच्छे सीनियर से कॉन्टैक्ट रखोगे दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। यस, वन हेल्पफुल सीनियर इज इन फ्रंट ऑफ यू, सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल। बट कितना ज्यादा मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ वो तो मैं नहीं बता सकती, बिकॉज प्लेसमेंट जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी प्लेसमेंट वीडियो में दैट आई एम ऑल्सो प्लेस्ड। सो मेरी जो ज्वाइनिंग है वो सितंबर से है। आई डोंट नो कि उसके बाद मैं यूट्यूब में आप लोगों के कितने क्वेश्चंस 1 बाय 1 दे पाऊंगी, बट आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियोस एंड अपलोड। डोंट फॉरगेट कि मैं बहुत सारे, अभी भी मेरे बहुत सारे सोर्सेज हैं जो आपको कॉलेज की सारी डिटेल्स देंगे एंड आपकी हेल्प करेंगे एंड मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, आपको सब चीज प्रोवाइड भी करूंगी, लाइक क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड ऑल दैट। दिस इज फॉर IGDTU स्टूडेंट्स, उनके IGDTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड स्टडी मटेरियल्स मेरे पास हैं, सो मैं उनकी हेल्प कर सकती हूँ। IGDTU, दिस इज फॉर यू एंड स्पेशली फॉर EC स्टूडेंट्स। बाकी ब्रांच के स्टूडेंट्स का आई डोंट हैव मच आइडिया, बट EC स्टूडेंट्स को तो मैं सब प्रोवाइड कर सकती हूँ। So be interactive with people, okay? I know if you are an introvert person, still try to make some contact with some of your seniors. This can only happen if you join any of the clubs or societies. And please, societies आप फर्स्ट या सेकंड ईयर ही ज्वाइन करना, क्योंकि फिर थर्ड ईयर तक आपके पास इतना काम हो जाता है that you ultimately leave the society or club, okay? ऑल्सो ये जो भी आप क्लब या सोसाइटी ज्वाइन करते हो, अगर आप 1 ईयर तक आपने वो सोसाइटी ज्वाइन किया और इसमें काम किया है, सो आपको उसमें सर्टिफिकेट भी मिलता है दैट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सोसाइटी एंड ये सब आप अपने रिज्यूम में डाल सकते हो, विच विल बी अ प्लस पॉइंट इन योर रिज्यूम। आई नो जो इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू इंटरैक्ट मच, बट आई एम टेलिंग यू इंटरव्यू में सबसे ज्यादा यही मैटर करता है आपकी, क्योंकि आप जब व्हेन यू विल स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद न्यू स्टूडेंट्स, न्यू पीपल, देन आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, यू विल गेट टू नो मेनी डिफरेंट थिंग्स अबाउट देम फ्रॉम देम। सो ये सब आपको बहुत हेल्प करता है आपके इंटरव्यू राउंड में, ओके? बट इंटरव्यू से पहले आता है, पहला स्टेप होता है आपका रिज्यूम चेक होता है। रिज्यूम में देखा जाता है आपने क्या क्या किया है, हैव यू बीन एक्टिव इन कॉलेज, क्या क्या किया आपने कॉलेज में, हैव यू बीन इन सम सोसाइटी, हैव डन समथिंग। मेरी वाली गलती मत करना, मैंने ये गलती की थी, मुझे लगा था सोसाइटीज ज्वाइन करने से क्या होता है। सो इसलिए अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, प्लस पॉइंट चाहिए और क्विकली चाहते हो आपकी इंटर्नशिप भी लग जाए और प्लेसमेंट भी लग जाए, तो इसीलिए आपको ये चीज करनी होगी कि अपनी रिज्यूम को जितना अच्छा कर सकते हो, जितना ब्यूटीफुल बना सकते हो बनाओ। ब्यूटीफुल का मतलब ये नहीं कि आपने आर्ट वर्क कर दिया अपने रिज्यूमे में, नहीं। योर स्किल्स, व्हाट यू हैव अचीव्ड, दैट शोज दैट हाउ मच यू हैव डन और हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव इन अ सर्टेन फील्ड। सोसाइटी ज्वाइन करने से रिज्यूम का क्या कनेक्शन है, रिज्यूमे में क्या ऐड करके क्या मिलेगा? द थिंग इज, कंपनीज देखती है कि आप कितने टीम वर्क कर सकते हो, आप कितना टीम वर्क आप कर सकते हो, ये चीज कंपनी नोट करती है। आपने क्या क्या किया है, हैव यू डन समथिंग विद अ टीम, बीइंग इन अ टीम और नॉट। दैट सर्टिफिकेट ऑफ व्हिचएवर सोसाइटी विल बी अ पार्ट ऑफ, वो ये चीज प्रूव करेगा दैट यस यू हैव डन समथिंग, you have done a teamwork also, you have been cooperative also, you have been leading that group. Next point is, be always grateful for what you have. It's very important that you should realize yourself that where you are is somewhere because of God, your luck and your parents. So always be grateful to God and your parents and your loved ones who have always pushed you to be a good person. Don't kill your goodness in the crowd, okay? Be in a good circle. So in my last video where I told you everything about girls college, I noticed that I don't know why again and again I was saying bunker beds then bunk beds. So please excuse me for that. I just wanted to say bunk beds, not bunker beds. Silly of me. But okay.
A tip which I would like to give you to before making a friend, while you are in the process to know any person, just understand one thing, and that is the basic family values same होना बहुत जरूरी होता है. Next point is try to be early to bed and early to rise, which means कोशिश करो कि जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो. लाइफस्टाइल बहुत बहुत चेंज हो जाएगी इससे, बहुत, जो कि मैंने अपनी लाइफ में तो किया नहीं, अपने कॉलेज लाइफ में. तो इट्स ऑन यू. सी व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस. ओके, सो इट्स नॉट कंपल्शन टू फॉलो ऑल दैट, बट इट्स योर विश. इफ यू वांट टू make some betterment in your life, you can do that. Try to sleep early. It's very difficult, I know, but try to sleep early and wake up early. Waking up early makes your day longer, which helps you do multiple of things where you can balance your life. Like you can enjoy also and you can study also and get good marks. Next, very important, ये point मैं भूल रही थी, that is attendance. IGT2 का तो मैं बता सकती हूँ कि attendance चिल है ब्रो, चिल है. आपको इतना प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है अटेंडेंस के बारे में. फर्स्ट ईयर को तो है, फर्स्ट सेकंड ईयर, बट फ्रॉम लास्ट ईयर और यू कैन, आई कैन से फ्रॉम विच सेमेस्टर, अबे जल्दी बोल. 6th semester, when your 6th semester will start, then attendance की जो requirement है, like इतने % हो जानी चाहिए, उसकी थोड़ी chill है. Attendance is chill after 6th semester, from 6th semester. Okay, attendance is chill. Before that, जो मैंने अभी देखा, like मेरे में तो जब मेरा बैच जब स्टार्ट हुआ था तब लॉकडाउन था फर्स्ट ईयर, उसके बाद और सब कुछ ऑफलाइन था, राइट. सो स्टार्टिंग में तो और क्या था कि कोविड कभी आ रहा था जा रहा था, तो अटेंडेंस इशू नहीं था मेरे बैच के लिए, अटेंडेंस इशू था ही नहीं, ठीक है. बट द स्टूडेंट्स आफ्टर मी, लाइक जो लास्ट ईयर जिन्होंने ज्वाइन किया है, जो बैच लास्ट ईयर आया है, उनसे आई गॉट टू नो दैट या अटेंडेंस इज गेटिंग स्ट्रिक्ट, लाइक 70%, 75% इज मिनिमम. बट इतनी अटेंडेंस का वो मत लो, टेंशन मत लो. फर्स्ट सेकंड ईयर हाँ थोड़ा सा रहता है कि अटेंडेंस, सेकेंड सेमेस्टर से टीचर्स गेट सीरियस अबाउट द अटेंडेंस. ओके, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बनाएंगे ना, तो फ्रेशर्स को इतना डराया जाता है, आई डोंट नो व्हाई. कोई डरने की जरूरत नहीं है, चिल, बट बी इन योर लिमिट्स, डोंट क्रॉस योर लाइंस. ओके, बी रिस्पेक्टफुल. फॉर माय मेन पॉइंट इज you will do good to others, good things will come back to you in some other way, maybe late, but okay, someday it will come back. That's it, I think मैंने almost सब बता दिया है, but okay, wait, let me check comments also. मैंने actually सबके comments देखने के बाद ही ये list बनाई है, but still let's check the comments. बहुत सारे students का एक question था that in which semester or which year you are. So my college is now over. I'm done with my 8th semester and now my corporate life is going to begin very soon. That's the thing. That is the reason कि मैं आप सबको इतनी सारी एक्सपीरियंस शेयर कर पा रही हूँ, प्लेसमेंट के बारे में भी, अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में भी, एंड कैसे कॉलेज लाइफ बैलेंस करें उसके बारे में. प्लेसमेंट एंड बीइंग फ्रेशर एट IGT2 अपॉर्चुनिटीज आई कुड ग्रैब इन फर्स्ट ईयर. सो आई टोल्ड यू फर्स्ट ईयर में आप DSA करो, क्योंकि DSA पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस करना ब्रो. पढ़ना नहीं, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये मान लो आपको डेली मिनिमम 1 आवर DSA को देना ही पड़ेगा डेली. लाइक आप ये चीज आप छोड़ ही नहीं सकते हो. आप में भी डेली अपना कोर्स करना पड़ो, बट आपको अपना DSA पक्का करना है इफ यू वांट to be in a software company, being a software engineer, being a software developer, or also you can be a UX UI designer also. उसके लिए भी आप पढ़ सकते हो कि what exactly you should study for that, UI UX designs, because इसमें ये जो आपको कोडिंग नहीं करनी होती, UX UI design is another option for you. If you are good at drawing, you should try UX UI designs, graphic designs. ये इसमें भी बहुत पैसा है भाई, बहुत पैसा है. So study for that also. Next है make a video for who want to take admission in BTech lateral. इसकी भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. How are batches divided in IGT2 under one stream like SE, CSE1 and CSE2? सिंपल है गाइस. जब एक क्लास में सारे बच्चे फिट नहीं आ सकते तो उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट्स इट. जैसे हमारे स्कूल में होता था, जैसे हम 12th में थे, सपोज वी आर इन 12th, तो 12th में बैचेस होते थे, 12th A, 12th B, 12th C, ऐसे क्लास के सेक्शंस होते थे. इट्स सिंपली दैट. मैंने देखा कि प्लेसमेंट वीडियो देखने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि ये CSE1, CSE2 क्या है, EC1, EC2 क्या है, व्हाई इट इज डिवाइडेड लाइक दैट. There is no difference. सब सेम है, पढ़ाई सेम है, बस बैच बना दिए, बैचेस बनाए हैं, CSE1, CSE2, EC1, EC2. That's it. इंजीनियरिंग along with UPSC प्रेप की गाइडेंस वीडियो प्लीज. सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे बैच में एक लड़की ने प्रेप भी किया और UPSC की प्रेप भी की और कॉलेज भी कंप्लीट किया है अच्छे मार्क्स से, लाइक गुड एवरेज मार्क्स. और अभी उसने अपने प्रीलिम्स भी कंप्लीट कर लिए, लाइक शी गॉट सिलेक्टेड, शी क्लियर्ड हर प्रीलिम्स आल्सो फॉर UPSC. सो दैट्स अ बिग डील कि आप पढ़ाई भी करो अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ आपने UPSC की प्रेप की एंड आपने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स किया और आपने फर्स्ट टाइम में ही क्लियर कर लिया. यू क्वालिफाइड इन फर्स्ट टाइम ओनली. दैट्स अ बिग डील. सो आई कैन ट्राई आस्क हर इफ शी इज कंफर्टेबल, बट फॉर दैट you have to subscribe my channel, and this video has gone way too long now, so let's say bye and see you in the next video. Okay, bye.